علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں سید فیصل کریم. آج ایک بہت ہی ہیپننگ ڈے ہے اور بہت ہی ہیپننگ شو ہونے والا ہے کیونکہ مدیحہ کچھ اچھی خبر ہے خواتین کے لیے مے بی اینڈ فار یو ایز ویل. شاپنگ مالز کھل رہے ہیں پوری ملک میں. لیکن میں فیصل بالکل شاپنگ کے لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں نے اب دیکھا میرے ملک میں 900 کے قریب تو لوگ ابھی جاں بھگ ہو گئے، کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اچھی خبر باقی لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ ٹرین سروس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. بٹ وہ ایس او پیز تو پھر ادھر بھی آپ نے فالو کرنے. دا مین تھنگ از مالز کھلیں، ٹرینز کھلیں، بس کھلیں یا پھر ہوائی جہاز. ایس او پیز جو ہے وہ آپ نے لازمی فالو کرنی ہے. بالکل فیصل، آپ نے بات بالکل صحیح کی. ایس او پیز فالو کرنی ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ کے بھی احکامات آ گئے ہیں سامنے اور اب مارکیٹس بھی کھول دی جائیں گے. اور ابھی ذرا ہم آپ کو لے چلتے اسلام آباد جہاں پہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر کسی کو آن لائن ٹکٹ کی خالی سیٹ ملتی ہے تو وہ کل بک کر سکتا ہے. بغیر بکنگ کے، بغیر ٹکٹ کے کوئی آدمی اسٹیشنز پر نہیں آ سکتا. 7,000 کراچی، ملتان، لاہور، راولپنڈی اور پشاور اور کوئٹہ، 7,000 ہماری نفری ہے پولیس کی، تمام میں ایمرجنسی نافذ کی ہے تاکہ وہ اسٹیشنوں پر اس چیز کو اشور کریں کہ کوئی مسافر کے علاوہ اسٹیشن میں داخل نہ ہو. اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں. اور بڑی مشکل سے غریب کی سواری کی اجازت ملی ہے، 20 تاریخ سے لے کے 31 تاریخ ہم نے نیا ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے تاکہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں، اپنی ٹرینوں پہ بیٹھ جائیں، سیٹیں ٹھیک جگہ سے ہیں. اور جعفر ایکسپریس کو ہم نے بالکل نئی 4 ریک نئے بنائے ہیں. بلوچستان سے، کوئٹہ سے جو کل چلے، پرسوں چلے گی، یہ ساری نئی ٹرین بنائی ہے. اور میں جہاں ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں، وہاں ریلوے کے مزدوروں اور افسروں کو بھی پیش کرتا ہوں کہ ریلوے کے مزدوروں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور افسروں نے کوئی چھٹی نہیں کی. یہ سب سے بڑا اعلان ہے جو آج آ رہا ہے. اور اس میں کل پشاور جا کر اس کو دیکھوں گا انتظامات. پرسوں جو گرین لائن ہے اس کو میں سی آف کروں گا، پھر لاہور سے کراچی کے لیے کروں گا اور ملتان کے لیے کروں گا تاکہ تمام ٹرینوں پہ ایس او پی لازمی قرار دی جائے. اور اگر کسی بھی شخص میں تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ کسی مسافر کو لینے نہیں آئے گا، کسی مسافر کو چھوڑنے نہیں آئے گا. سپریم کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سپریم کورٹ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت سارا کام آسان کر دیا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگ پہنچ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب، صوبوں کے ساتھ مشاورت ہو گئی ہے؟ کسی صوبے کے ساتھ کسی صوبے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. میں 4 صوبوں کا مشکور ہوں. ایک ٹرین چل رہی ہے، صرف ایک ٹرین جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے. کراچی ٹرینیں جا رہی ہیں. شاہ صاحب سے میں خود بھی بات کر لوں گا. میری کسی صوبے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ 4 صوبوں کی جنجیر ہے ریلوے. اور مجھے امید ہے کہ ہمیں اسٹیشن کے باہر ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی، ورنہ پولیس بھی اسٹیشنوں کے باہر بھی ہم اپنی لگا سکتے ہیں. ہماری اپنی 7,000 پولیس ہے. شیخ صاحب، جو پابندی تھی عمر کے حوالے سے، یہاں پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے عمر کے حساب سے. ہمارے یہاں ریلوے میں کوئی پابندی نہیں ہے. بچے، بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ کیبن بک کرتے ہیں. وہ اپنے فاصلہ رکھ کے ہم نے سواریوں کا حساب رکھا ہے اور اس کے تحت ہم اجازت دے رہے ہیں. میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں. اور کسی ڈویژن سپریڈنٹ کے علاقے میں ٹرین میں ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی تو میں اسی وقت اس ڈویژنل سپریڈنٹ آفیسر کے خلاف ایکشن ہوگا. کوئی رعایت نہیں ہوگی. تمام ڈی این آج 24 گھنٹے ٹریک میں ٹرالی کریں اور تمام سٹیشنوں کو بالکل جیسا میں نے پہلے ہدایت کی ہے. کل تمام سٹیشنوں پہ جہاں گاڑیوں نے رکنا ہے وہاں ریہرسل بھی کی جائے گی تاکہ ایس او پی کو صحیح طور پر لگایا جائے. تمام سٹیشنوں پہ کل ریہرسل ہوگی. پرسوں سے نئے ٹائم ٹیبل کے تحت یہ 15 ٹرینیں 31 تاریخ تک، عید کی واپسی تک چلایا جا رہا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتری کی، اور میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں رات کو. اگر وائرس کے حالات بہتر ہو گئے تو ہم 1 جون کو اور ٹرینوں کا اضافہ کر دیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیں تقریباً 2 مہینے سے ٹرین آپریشن بند رہا تو کتنا لاس ہوا ہے؟ 5.25 ارب روپیہ پر مہینہ. میں حفیظ شیخ صاحب کا اور خاص طور پر اسد عمر اور جنرل افضل کا، تینوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری
ट्रेन के फैक्ट्रियों में मदद की अफजल ने, शेख हफीज़ ने और असद उमर ने हमारी मज़दूरों की सैलरी में हमारी मदद की। ये बताइएगा कि जब वज़ीर इमरान खान ने ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर में और उसके बाद दूसरे रोज़ रावलपिंडी में आपकी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। वही बात है कि सिर्फ गरीब के लिए आप बोले थे, इसमें शेख रशीद का किरदार तो है, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि वो कौन सी हर्डल्स थी जिसकी वजह से आज सबसे एंड पे जाके रेलवे का आज फैसला हुआ है, उसमें भी आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। इसके साथ ये बता दीजिएगा कि जो रेलवे की जिस तरह पहले जो सवाल हुआ था, उसमें जो रेलवे का जो तमाम तक जो ऑपरेशन है, जितना खसारा है, उस हवाले से भी कोई आपने जो प्लान किया है? कोई हमारे खसारे में फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60% पैसेंजर में हमें नुकसान है, लेकिन हम लोगों की सवारी हैं, हम कौमी अदारा हैं, हम आड़त की दुकान नहीं है, हम किसी सूबों के भी मुतहत नहीं है। इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं और ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा कि हमारे इंतज़ामात को ठीक रखें वो। और हम जो हैं ये मरकज़ की सवारी हैं, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है 31 तारीख़ तक इन ट्रेनों पे कौम को गुजारा करना पड़ेगा मोहतात तरीके से। 31 तक हालात ठीक रहे तो 142 की 142 ट्रेनें खोल देंगे। फिर मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर 31 तारीख़ तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम हालात ठीक किए तो मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, सारी ट्रेनें 1 जून से खोल दूँगा। जिस तरह शेख साहब आपने कहा ये गरीब की सवारी है, तो कोई रेट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? हमने आधी सवारी लेके जा रहे हैं, कोई फ्रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, इजाफा नहीं किया। इंडिया ने दुगनी कर दी है रेट। देखें इंडिया में कितना रेट बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि सवारी आधी की है इसलिए इसके रेट में कोई इजाफा नहीं किया। शेख साहब, हालात ठीक रहने का पैरामीटर क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि सवारियों की ईद के बाद वापसी तक हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व जो आप करेंगे वो किस तरीके से होगा? ताकि लोग अगर हमसे तावन करते हैं, लोग SOP पे अमल करते हैं, लोग जो है हमारे जो अमला है, हमने अमला बढ़ा दिया रेलवे का, उनके साथ वो कोऑपरेशन करते हैं तो फिर तो मसला सब ठीक है। अगर किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर मसला गलत है। शेख साहब ये बताएं कि पेट्रोल तकरीबन 40 रुपए तो सस्ता हो गया, लेकिन महंगाई है उतनी तेजी से बढ़ गई है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही? कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, कोई साजिश नहीं हो रही। हुकूमत चल रही है और चलती रहेगी। बल्कि उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे और ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आ गया और जल्द क्या होता है ECL में भी उनका नाम आ जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा। फिर वो रोएंगे कि कहाँ गए वो दिन। शेख साहब, ईद के बाद सियासी सूरत हाल क्या बन रही है? ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा और ये कहाँ गए वो दिन वाले जो है ना, ये ECL होंगे और अंदर भी होंगे। ये सारे जिन्होंने मछंदरे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि नैब आर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। थैंक यू। में वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 30 ट्रेनें चलाने की इजाज़त मिली है। उनका ये कहना था कि अगर कहीं भी SOP की खिलाफ वर्जी हुई तो रीजनल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ में उनका ये भी कहना था कि इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर हुए तो फिर 1 जून से जो बाकी तमाम 142 ट्रेनें हैं वो तमाम तो ट्रेनें चला दी जाएंगी। अच्छा, इसके हवाले से SOPs भी उन्होंने बताए हैं कि कोई कैद नहीं है कि हर कोई इसमें अपनी बुकिंग करा सकता है। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन यह है कि अगर उन SOPs को फॉलो नहीं किया गया तो फिर जो रीजनल सुपरिटेंडेंट है, जैसे आपने बताया, कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और लोगों ने बुकिंग भी करा रखी है। तो ओवरऑल एक अच्छा दिन कहा जा सकता है शॉपिंग मॉल्स खोलने का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ट्रेन्स भी खुल रही हैं। और लेकिन इसमें एक और बात जो शेख रशीद साहब ने कही कि जिसकी ऑलरेडी बुकिंग ना हो वो रेलवे स्टेशन का रुख ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐड करेगी, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो अभी तो आपने जानी टॉप स्टोरीज और सबसे पहले हम जरा कोरोना के हवाले से आपको अपडेट देते चलें कि दुनिया भर समेत पाकिस्तान में फैले कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है और अब तक मुल्क में आलमी वबा के मुसद्दिका केसेस की जो मजमूई तादाद है वो 42,227, जबकि अमवात जो हैं वो 903 तक जा पहुंची हैं। बिल्कुल। और सरकारी सतह पर अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के फराहम करदा आदाद शुमार के मुताबिक सिंध इस वक्त मुतासरीन की तादाद में जो है वो 16,377 वहाँ पर आदाद है, जबकि पंजाब में ये तादाद 15,346 हो चुकी है।
अब वबा से सेहतियाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो कोरोना वायरस ने 6061 लोगों को मुतासर किया और बलूचिस्तान में ये तादाद 2692 तक पहुँच गई है। 1 मई से आज तक पाकिस्तान में 23,000 से ज़ायद केसेस और 900 के करीब अमवात हो चुकी हैं। बिल्कुल, कोरोना वायरस का पहला केस आने के बाद से टेस्टिंग की सलाहियत में 30 गुना इजाफा किया गया है और हफ्ते को एक ही रोज़ में रिकॉर्ड 14,878 टेस्ट किए गए हैं। इस्लामाबाद ने मजीद 50 केसेस की तस्दीक के बाद मुतासरीन की तादाद अब 1000 के करीब पहुंच गई है। 13 नए केसेस सामने आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की जो तादाद है वो वहाँ पर 540 हो गई है। आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो आज़ाद कश्मीर में लोगों में कोरोना वायरस के 112 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। एब्सोल्युटली, तो ये वो आदाद शुमार है जो इस वक्त मुल्क भर में है राइजिंग। अब हमने जैसे कि आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि आज का दिन बड़ा अच्छा है और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि रेल जो है वो अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है। ताजिरों के लिए जो इतने अरसे से मदिया ये कह रहे थे कि हमें कारोबार करने दिया जाए, तो फाइनली उनकी सुन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के तमाम शॉपिंग मॉल जो है वो खोलने के जो अहकामात दे दिए हैं। छोटी मार्केटें हफ्ते और इतवार को भी खुली रखने का हुक्म दे दिया। मदिया, यही वो पॉइंट था कि जिस पे ताजिर बरादरी आखिर माह के डेडलॉक हो रहा था। लेकिन मसला ये हो रहा था कि SOPs को फॉलो कैसे कराएंगे। साहब ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद भी होगा। शाम 5 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। तहरीरी हुक्म में अदालत का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरा मुल्क बंद ना किया जाए। दीगर बीमारियों से हजारों लोगों की अमवात होती हैं, हुकूमत उन पर भी तवज्जो दे। साथ में चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। कमिश्नर कराची ने अदालत को ये बताया कि कुछ मार्केट्स को SOPs पर अमल ना करने पर सील भी किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हम हिदायत देते हैं कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। अब दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। सील की गई मार्केट्स को भी खोलें, उन्हें डराने के बजाय समझाएं। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल भी किया कि कराची में 5 बड़े मॉल्स के अलावा क्या सब मार्केटें खुली हैं? अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो शॉपिंग मॉल बंद क्यों रखे हैं? चीफ जस्टिस ने फिर ये भी इस्तफसार किया कि हमें मंतिक बताई जाए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकला करता है? बिल्कुल, साहब ने कहा कि हमने तहरीरी हुक्म देंगे कि हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाएं। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ईद पर रश पड़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं और इस मौके पर अदालत ने पूरे हफ्ते भी मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खोलने दे दिया। और इसके अलावा अदालत ने कमिश्नर कराची से शहर में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अंजुमन ताजरान पंजाब मलिक शाहिद गफूर। सबसे पहले हम शर्जील गोपलानी साहब की तरफ जाएंगे। शर्जील गोपलानी साहब, अब काफ़ी देरीना मुतालबा था आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, मार्केटें खुली, लेकिन समहाउ SOPs पर अमल दरामद ही हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आ गए हैं। सो सबसे पहले आपको कमेंट लेना चाहूँगी इस पर। तो मैं आपका आज फैसल बैठे हैं, फैसल आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि प्रोग्राम तो आप लोगों का ही था जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया। और जो दूसरी बात आ जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर जारी किया, ये मन वही ऑर्डर है जो हम कल कमिश्नर कराची साहब के दफ्तर में बात कर रहे थे कि SOPs पे अमल कराने के लिए हमें किसी तरीके से भी जो है वो इंतजामिया सपोर्ट करे। और इंतजामिया ने कल हमें रद्द कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारा काम आपका है और ये आप ताजिर जो है वो आवाम को भी संभालें और काम को संभालें। हमारा कहना ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जो है क्राउड मार्केट में आ जाएगा। हम जो है SOPs पे अमल कराने में हमें तकलीफ हो रही है। इंतजामिया अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो हम लोगों को संभालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि लोग हमसे ज़्यादा इंतजामिया की बात सुनते हैं। और ये बात कल हमारी मीटिंग में रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर जारी किए हैं, ये
कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जारी किए हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम है। वैसे भी आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गोपलानी साहब ये बताइएगा कि कल आपने कहा था कि आप दुकानें 12 बजे तक खोलेंगे, तो क्या आज की जो दुकानें वो 12 बजे तक खुली रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बिल्कुल मन अमल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हमें रिलैक्सेशन दे दी है कि जो हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म कर दी है, तो इट मीन कब चांद रात तक मार्केटें खुली रहेंगी। ठीक है, यानी कि 5 बजे तक खुलेंगे, ऐसा ही है? ये बिल्कुल 5 बजे तक खुलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर हम 101% अमल करेंगे। ठीक है, अब पंजाब की सूरत हाल जानते हैं। मलिक शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम ये फैसला आया है एंड इट्स ऑल जो आप लोग चाहते थे, तो क्या कहेंगे आप? और लेकिन ये जो हुक्म आया है इसके साथ SOPs पे अमल दरामद कराने की भी अब जिम्मेदारी आती है, लेकिन इस बात में कुछ तजब्जुब का शिकार नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अभी शर्जील साहब ने भी कहा कि अवाम को हम पे छोड़ दिया गया कि हम ही उनसे हम उनको पाबंद करें। अवाम को खुद भी सोचना चाहिए। इसमें आप अपना किरदार कैसे देखते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं, और अवाम को SOPs पे अमल कराते हुए आप अपना किरदार कितना देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जी, एक तो ARY का, फैसल साहब आपका, मदिया साहिबा आपका, कि आपने हमारे जो ताजरान के मसाइल हैं उसको उजागर करने में हमेशा हमारी मदद की। गुजारिश ये है जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं और उनको चीफ जस्टिस साहब को, दीगर जो जजेस साहिबान हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि जो काम हुकूमत का है, जो हुकूमत को करना चाहिए, वो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम उसके दिली शुक्रगुजार हैं कि हमें मुआशी मसाइल से निकालने में हमारी मदद की। जहाँ तक बात है कोरोना का, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि क्या कोरोना मखसूस दिनों में ही आएगा, क्या किसी ने उनको इतला दी गवर्नमेंट को? ये बड़ी अच्छी बात है और यही बात हम भी कहते हैं। देखें, जिसने एहतियात करनी है वो तो बहुत जरूरी है और एहतियात करना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि हम इस मुल्क के ऐसे शहरी हैं जो मुल्क के कानून को मानते हैं। और ताजरान ने पिछले 2 माह से अपने कारोबार को बंद रखकर ये साबित किया कि हम इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत के साथ पूरा तामन करते रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत है कि ताजरान ने अपने जो मुआशी मसाइल हैं उनका मुकाबला करने के लिए जो हुकूमत ने मुतालबा किया था कि हमें ईद तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए और उसमें जो 2-3 छुट्टियां हैं उसको खत्म किया जाए, लेकिन हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके ताजरों के दिल जीत लिए। मैं अब इसी हवाले से हुकूमत से ये मुतालबा भी करना चाहूंगा कि जो शाम 5 बजे की टाइम की पाबंदी है वो खुदारा आप खत्म कर दें। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो मेहरबानी की, लेकिन ये फर्ज गवर्नमेंट का है कि ताजरान के मसाइल जिसको वो मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से मानते हैं, लेकिन उस हड्डी को तोड़ना चाहते हैं। हमें अभी इजाजत चाहिए कि हमें 24 घंटे कारोबार चाहिए ताकि रश मजीद तकसीम हो जाए और ताजरान को और आवाम को रश जो है वो तकसीम हो जाए, रश ज्यादा ना बढ़े। और आप लोग की डिमांड यही है कि 24 घंटे के अगर आपको कारोबार करने की इजाजत मिले तो जो अभी मार्केटों में रश है वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सदर अंजुमन ताजरान पंजाब मलिक शाहिद गफूर, और साथ में हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑल सिटी ताज इत्तेहाद एसोसिएशन और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब एक चीज़ तो फैसल अच्छी होगी है कि ये कह रहे थे कि हमारी मार्केटें खोलने की हमें इजाजत दी जाए, मार्केटें खोल दी गई हैं, लेकिन अब SOPs पर अमल दरामद करना, विद फ्रीडम कम्स रिस्पांसिबिलिटीज। ठीक है, हाँ। और हमने देखा भी कि आपने क्रॉस लगा दिया, और एक सवाल जो हमेशा से आ रहा था जहन में, आपने छोटी मार्केट्स जब खोल दी थी जहाँ पे रश का इम्कान ज्यादा था, तो बड़े मॉल्स क्यों ना खोल रहे हैं कि जहाँ पे रश का इम्कान इतना ज्यादा नहीं है। खैर वो चीज हो चुकी है, कंट्रोल एनवायरनमेंट भी होता है। एब्सोल्युटली, ये हुआ भी है। कराची के मुख्तलिफ जो कुछ मॉल्स थे जहाँ पे ग्रोसरीज ऑन थी, वहाँ पे उन्होंने मार्कर्स लगाए हुए थे और उनको फॉलो कराया जा रहा था। तो ये तो हमने बात की ताजरान से। फैसल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब जो हमारी आवाम है जो हमें देख रही है वो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अगर बिला वजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं आप कोरोना वायरस अपने घरों में ना लेके जाएं। तो ये अब आप लोगों ने ख्याल रखना है। बिल्कुल। अब मार्केट्स जो खुल गई हैं उनमें सूरत हाल क्या है, जैसे मदिया आप कह रही थी आवाम पे जिम्मेदारी, तो देखते हैं कि आवाम कितनी जिम्मेदारी है। शॉपिंग मॉल भी खुल गए ऑब्वियसली, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कराची से नुमाइंदे होंगे और लाहौर से भी होंगे। तो कराची में राफे जरा बताएं, मार्केट्स खुल गई हैं, अच्छी चीज़ है, लोगों के लिए निकल पड़े होंगे वो शॉपिंग मॉल्स के लिए भी, SOPs पे कितना अमल हो रहा है?
دیکھیں فیصل، بالکل سپریم کورٹ کے احکامات آئے اور اس کے بعد اب کراچی میں تاجروں کے لیے خوشی ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار لاک ڈاؤن مکمل طور پر نہیں ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار بھی دکانیں کھلیں گی۔ اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے اس کے بعد لوگوں کا ایک رش امڑ آیا ہے مارکیٹوں میں، اور دیکھنے میں آ رہا ہے فیصل کے خریدار کم ہیں اور گھومنے پھرنے والے لوگ مارکیٹوں میں زیادہ نظر آ رہے ہیں، جس کی نشاندہی آپ نے ابھی خود بھی کی کہ کرونا وبا چل رہی ہے، لوگ گھروں میں محفوظ ہیں، اگر ان کو شاپنگ نہیں کرنی ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، ورنہ وہ گھر کرونا لے کے جائیں گے۔ اب جہاں تک ایس او پیز کی بات ہے فیصل، تو ایس او پیز پر بالکل عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کہا گیا تھا کہ دکاندار جو ہیں وہ ماسک کا استعمال کریں گے، جو خریدار آئیں گے وہ ماسک کا استعمال کریں گے، سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے گا، دکان جو شاپنگ مال ہے اس کے باہر جو ہے وہ سینیٹائزر رکھے جائیں گے تاکہ خریدار اندر داخل ہوں تو وہ سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو، اس کے ساتھ ساتھ گلوز اور ماسک کا استعمال کیا جائے گا۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہر کی جو بڑی مارکیٹیں ہیں جو کھلی ہیں وہاں پر ایس او پیز پر بالکل بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ شہر کی بڑی مارکیٹ سے لوگ ایس او پی کا بالکل خیال ہی رکھ لیں۔ لاہور کا ذرا رخ کرتے ہیں، رابعہ نور ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہے۔ رابعہ، لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ لاہور میں تو آج سے تو شاپنگ مالز بھی کھل گئے ہیں، بڑے پلازas بھی کھل گئے ہیں۔ جی بالکل، لاہور میں تمام شاپنگ مالز جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اور مارکیٹ تو پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی، تو لوگوں کا جو ہے وہ رش خاصا دیکھنے کو مل رہا ہے، اور اسپیشلی خواتین جو ہیں وہ تو لگ رہا ہے آزاد ہو گئی ہیں اور وہ مارکیٹ سے گھومتی نظر آ رہی ہیں۔ ایس او پیز جو ہیں وہ ایک طرح سے فالو کیے جا بھی رہے ہیں اور نہیں بھی۔ دکاندار جو ہیں مکمل طور پہ ماسک پہنے ہوئے نہیں نظر آ رہے، لیکن جو لوگ مارکیٹس میں آ رہے ہیں میجورٹی جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے نظر آ رہی ہے، سینیٹائزرز بھی لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز جو مجھے لگ رہا تھا کہ آن لائن شاپنگ کو اب کی دفعہ زیادہ فوکس کیا جائے گا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ الٹا یہ نظر آ رہا ہے کہ برانڈس کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہے کہ قطار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، فاصلے میں ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ ایس او پی فالو کیے جا رہے ہیں کہ فاصلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے جو ہے وہ دکانوں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ سے بہت زیادہ رش ہے یہاں پر، اور جب تک یہ خریداری جاری رہے گی خواتین کا جو ہے وہ رش مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نظر آتا رہے گا، اور بچے بھی جو ہیں وہ یہاں پر لے کر آئے ہوئے ہیں خواتین، اور اسپیشلی خواتین کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچوں کی خریداری کے لیے نکلتی ہیں، اپنے تو کپڑے خرید سکتی ہیں لیکن بچوں کی خریداری کے لیے ان کو خود آنا پڑتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جوتے تو آن لائن نہیں خریدے جا سکتے، جب تک پہن کر نہیں دیکھیں تب تک مزہ نہیں آتا۔ تو یہاں پر زیادہ تر وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو مزہ نہیں آتا آن لائن خریداری کرنے میں، ان کو جب تک وہ جا کے خود بحث نہ کریں، خود نوک جھونک نہ کریں، خود ریٹ نہ کم کرائیں، وہ لوگ یہاں پہ خریداری یعنی کہ خواتین کا حالات چاہے جو بھی ہو، ہم تو کھل کر ہی شاپنگ کریں گے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے کیونکہ آن لائن شاپنگ ویسے نہیں ہو سکتی۔ رابعہ نور ہماری نمائندہ لاہور سے میں صورتحال سے اپڈیٹ کری تھی، اور راستے میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے کراچی میں لوگ اب بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کریں، نہ لوگ سینیٹائزر کا استعمال کریں، نہ لوگوں نے منہ پہ ابھی بھی ماسک لگایا ہوا ہے۔ بالکل، تو ہم رافع آپ کا بہت شکریہ، رابعہ آپ کا بہت شکریہ۔ جیسے آپ لوگ بتا رہے تھے کہ لوگ باہر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مزہ نہیں آئے گا شاپنگ کے بغیر، مزہ نہیں آئے گا بیماری گھر لیے جائے بغیر نا ان کو، میرے خیال سے تو جب کراچی بھی اس میں آگے آگے، لاہور بھی آگے تو پشاور جو ہے وہ کیسے پیچھے رہ جائے؟ پشاور کے تجارتی مراکز میں بھی ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ انتظامیہ خاموش نظر آ رہی ہے، بازاروں میں رش ہے اور بے تحاشا رش ہے۔ اب آپ یہ مناظر بھی دیکھیے، انتظامیہ نے حکومت کو جو ہے وہ الرٹ کر دیا۔ بالکل جی، اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے بیورو چیف کر پشاور ہمارے ساتھ موجود ہے ضیاء الحق۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ مارکیٹیں کھل گئی ہیں لیکن ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں کروا رہا، اور جس نے عمل درآمد کرانا ہے وہ انتظامیہ، وہ ہی اس نے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ ان کا یہ بتانا ہے کہ جب وہ لوگوں کو منع کرتے ہیں تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، بلکہ وہ وائلیشن پہ آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے انتظامیہ نے حکومت کو اب یہ ایک ایس او ایس جاری کیا ہے ایک لحاظ سے، کہ انہوں نے حکومت کو متنبع کیا ہے کہ جس طریقے سے پشاور میں اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی اموات بڑھ رہی ہیں دیگر صوبوں کے مقابلے میں، اس کے تناظر میں یہاں پر بازاروں میں رش بھی بڑھ رہا ہے۔ اس رش کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طریقے سے تاجروں نے اور حکومت نے آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی تھی، وہ انڈرسٹینڈنگ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ دکانوں میں بے تحاشا چھوٹی چھوٹی دکان ہوتی ہے، اس میں 20 گاہک وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی سینیٹائزر وہاں پر نہیں ہے، ایون کہ جو گاہک آتے ہیں وہ بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں، جو کہ بچوں پر بھی پابندی تھی۔ تو انتظامیہ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے یعنی کہ جو منع کیا ہوا ہے وہ سب ہو رہا ہے، بچوں بھی مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں بچے، اور لوگ بھی آ رہے ہیں، ماسک نہیں ہے، سینیٹائزر نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں ہے، اور جس نے یہ سب امپلیمنٹ کرانا ہے انتظامیہ، اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، وہ خاموش ہے اور اس نے کہہ دیا کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے۔ یہ پشاور کی صورتحال سے ہم آگاہ کر دیں تو پشاور کی صورتحال ہے مدیہ، جیسا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ
फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आज़ादी मिली है, आप खुल के सारी चीज़ें करें, लेकिन ये एटलीस्ट ये तो देखें कि आप अब बच्चों को ना लेकर आएँ, खुदारा उन पे रहम करें। नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंतजाम है नहीं, बल्कि लोगों का भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जरा एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए घरों से बाहर निकलें। ये पहली ईद, अगर ये शायद अल्लाह करे ये पहली और वाहिद ऐसी ईद हो जो हमें इन हालात में मनानी पड़ेगी, आगे अल्लाह ना करे कोई ऐसी ईद ऐसे आए। ये मनाजिर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसमें रश देख सकते हैं, खवे से खवा यहाँ पे चल रहा है, लोगों ने बराए नाम यहाँ पे मास्क लगाए हुए, जो 3-4 लोग आपके सामने से भी गुजरे जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए, तो नाक किसी ने नहीं अपनी कवर की हुई। यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किए बगैर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक साथ खड़े हुए हैं, और कुछ इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग भी गैर जिम्मेदार हैं और इंतजामिया उसने भी हाथ उठा लिए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। शॉपिंग मॉल ज़रूर खुल गए हैं, लेकिन लोगों को अब इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उनके लिए ही ये तमाम तर चीज़ें की गई हैं। जिम्मेदारी का एहसास करें, दूर रहें, महफूज रहें ऑब्वियसली, और इस ईद को अच्छी ईद बनाएं, ना कि ये कि अपने लिए कुछ मुश्किल खड़ी करें। बिल्कुल, इंतज़ामिया यहाँ पर खामोश है और लोग भी यहाँ पर SOPs को फॉलो ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हम आपको नाज़िर दिखा रहे हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, कैश रिलीफ प्रोग्राम के तहत इस वक्त रकम तकसीम की जो तकरीब है वो हो जा रही है। इस्लामाबाद के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद हैं और सानिया निश्तर भी मौजूद हैं। तो वज़ीर आज़म का एक प्रोग्राम जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ़ भी की जा रही है, गरीबों का एहसास करते हुए इस लॉकडाउन में, क्योंकि पाकिस्तान यकमुश्त 2 लड़ाइयाँ इकट्ठे लड़ रहा है, एक जानिब कोरोना, एक जानिब गुर्बत। तो इस हवाले से इमरान खान वज़ीर आज़म ने गरीबों का एहसास किया है और जो है ये प्रोग्राम जिसकी पूरी दुनिया मुख्तलिफ है। आपने बिल्कुल सही बात फैसल की कि इमरान खान से कहा था कि हमारा मुल्क जो है उस वक्त 2 फाइट जो लड़ा है, एक तो कोरोना के खिलाफ और एक मुआशी फाइट जो कि मुसलसल लड़े हैं। आज आपने देखा कि एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के थ्रू जो मज़ीद जो कैश तकसीम करने की जो तकरीब है, ये तकरीब जारी है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन तमाम तर लोग जो कि बेरोज़गार हुए थे उनके लिए भी एक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, जिसके थ्रू वो तमाम तर लोग जो कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक के दौरान जो बेरोज़गार हुए हैं, एक प्रॉपर उनका प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और उसके बाद ये रकम उन तक भी पहुंचेगी। साथ में आज से जब 2 दिन पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तमाम तर टास्क फोर्स टीम के साथ बैठ के जब आवाम को एतमाद भी लिया था, तो उसमें तब भी सानिया निश्तर साहिबा ने कहा था कि जो एहसास किफ़ालत की जो आखिरी किस्त है, जो आखिरी लोगों को मैसेज जाने हैं, जिसका लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो मैसेजेस भी मंडे के दिन जो हैं वो लोगों को मौसूल हो जाएंगे और जितनी तमाम तर जो बकाया जात हैं, जो लोगों तक रकम पहुंचनी है, वो रकम भी पहुंच जाएगी। अभी जो तकरीब हो रही है, ये तकरीब हो रही है इस्लामाबाद में, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की एहसास प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की है और साथ में हम देख सकते हैं सानिया निश्तर साहिबा इनके साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा किया है। ये वो प्रोग्राम है जो बेरोज़गार अफराद जो हुए हैं इस तमाम तर लॉकडाउन के अरसे में, उनके लिए हुकूमत ने यह एहसास करते हुए किया है। और इस वक्त इमरान खान एक ऐसे ही गुफ्तगू कर रहे हैं, सानिया निश्तर भी मौजूद हैं। और मदिया, शुरू से ही हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने कोशिश ये की है कि एक जानिब कोरोना के ख़िलाफ़ जो है हम अपनी लड़ाई भी लड़ें और दूसरी ही जानिब जो है उन तमाम लोगों का भी एहसास करें कि जो रोज़ाना कमाते हैं और वो उनको काम नहीं मिल रहा, तो अब वो घरों पे बैठ गए हैं। ऐसी सूरत हाल में उनका साथ नहीं छोड़ना, उनको साथ लेके चलना। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था इसमें अवाम उनका ताउन करे कि जैसे हमने अगर मैसेज करना, हम 1 रुपया भी देंगे तो आगे से हुकूमत पाकिस्तान 4 रुपये इसमें मजीद ऐड करके उन लोगों तक पहुँचाएगी जो कि इस तमाम दौरानी में बेरोज़गार हुए हैं। 2.5 करोड़ के करीब अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे मजदूर हैं जो बेरोज़गार हुए हैं इस तमाम सूरत हाल में, और अगर 6 बंदे भी उनके कुनबे में लगा लें तो उससे डायरेक्टली 15 करोड़ आवाम जो है वो मुतासर हुई है। और अभी जो एहसास प्रोग्राम, इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जिसका इनेकाद किया जा रहा है, उसमें उन तमाम तर लोगों को रकम मिलेगी उन वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जो कि कोरोना आउटब्रेक के इस टाइम में बेरोज़गार हुए थे। एक प्रॉपर वेरिफिकेशन का प्रोसेस है जिससे वो गुजरेंगे और आज बाकायदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक मोहम्मद शहरी हैं, वो कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से। एहसास इमरजेंसी कैश का इजरा किया है और ऐसे में वहाँ पे वो अफराद जो कि बेरोज़गार हुए हैं उनको वहाँ पर बुलाया गया है ताकि अब उनकी इमदाद की जा सके। साथ ही ना सिर्फ ये कि एहतियात और रकूम दी जा रही हैं, तकसीम की जा रही हैं, बल्कि
اس کی شفافیت کا بھی بھرپور طریقے سے خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ کوئی اس پروگرام پہ انگلی نہ اٹھا سکے. تو وزیر اعظم عمران خان نے بے روزگار افراد کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا اجرا کر دیا ہے. بالکل فیصل, اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں سے بھی اپیل کی تھی, وہ لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہیں وہ لوگ بھی کس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان حکومت پاکستان کا اس میں ساتھ دے سکتے ہیں. اس حوالے سے پورا ایک پروسیجر بتایا گیا تھا کہ اگر آپ 1 روپیہ بھی ٹرانسفر کرتے ہیں تو حکومت پاکستان اس 1 روپے کی جگہ 4 روپے جو اور ایڈ کر کے ان لوگوں کو دے گی جو کہ اس تمام تر دورانیے میں بے روزگار ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ کووڈ-19 کے آؤٹ بریک کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان نے کافی معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ سفر کی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے, اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے آج احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا آغاز کیا ہے جس میں ان تمام تر لوگوں کو کیش جو ہے وہ دیا جائے گا جو کہ اس تمام تر دورانیے میں بے روزگار ہوئے ہیں. اس موقع پہ وزیر اعظم خود اظہار خیال بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ بھی رہے ہیں, اور ہم کافی دیر سے یہ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, خیال رکھیں اپنا. ہم اس کی پریکٹیکل ایگزامپل اگر اس بڑے لیول پہ دیکھیں تو اس سے بہتر ایگزامپل سیٹ نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم نے خود بھی احتیاطی تدابیر اپنائی ہوئی ہیں اور لوگوں کو بھی وہاں پر پابند کیا ہوا ہے کہ وہ ماسک پہنیں, ایک فاصلے سے کھڑے ہو کے گفتگو کریں, کیونکہ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے. سو دس از بڑے پلیٹ فارم پہ اگر ایسی ایگزامپل سیٹ ہو جائے تو پھر لوگ اس کو پھر لازمی فالو کرتے ہیں. بالکل, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان خود بھی پروسیجر تمام تر فالو کریں, جو SOPs جو عوام کو بتائے گئے ہیں. خود ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان تمام تر SOPs کو فالو کریں. تو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس کا خیال رکھیے گا کہ اپنا خیال رکھیں, جب گھروں سے باہر نکلیں ایک تو بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, اور اگر آپ نکلیں تو ان تمام تر SOPs کو ذہن میں رکھتے ہوئے گھروں سے نکلیں کہ جس میں ماسک ضروری ہے, کیونکہ اب فیصل WHO نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو کرونا کا یہ ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں اس کے ساتھ ایک طرح سے گرو کرنا ہے, فائٹ بھی کرنا ہے. اور بہت ساری بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا, کیونکہ جہاں ہماری اکانومی کافی زیادہ سے سفر کیا ہے, بہت ساری بڑے اداروں نے لوگوں کو فائر بھی کیا ہے, کیونکہ وہ ادارے بھی سفر کر رہے تھے. بہت بڑی تعداد میں جو لوگ بے روزگار ہوئے تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے کہ اب آنے والے حالات بھی بہتر نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں, کس طریقے سے وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکتے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم بہت زیادہ سخت ہے. انفیکٹ فیصل, وہ بہت سارے سفید پوش لوگ جو کہ باہر آ کے لوگوں سے مانگ نہیں سکتے, جو کہ بے روزگار ہوئے ہیں. چلیں آپ 1 مہینہ 2 مہینے اپنے گھر چلا سکتے ہیں, لیکن آگے آنے والے مہینوں میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا آج انعقاد کیا ہے, جس میں کافی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو بے روزگار ہوئے تھے ان کو کیش ملے گا. بالکل, اس اجرا کی تقریب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثانیہ نشتر بھی موجود ہیں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے پروگرام کی. اس کے علاوہ وفاقی وزیر حماد اظہر بھی موجود ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان کا یہ احساس ان غریبوں کے لیے, ان بے روزگار افراد کے لیے کہ جو اس ملک کی معیشت کی بھٹی چلاتے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ان کے لیے اتنا بڑا پیکج لے کے آنا, اور یقیناً اس سے پہلے بھی جب فی خاندان 12,000 روپے دیے جا رہے تھے اس کو بھی دنیا نے بہت اپریشیٹ کیا تھا, سراہا تھا. اتنے بڑے پیکج کے ساتھ کسی اور ملک نے اپنے لوگوں کے لیے یہ کام نہیں کیا جو وزیر اعظم عمران خان نے سوچا, کیونکہ جو یہاں پر اور فیصل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو تمام تر صورتحال کا معائنہ بھی کر رہے ہیں, چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور ساتھ میں جو یہاں پر فیملیز اس پروگرام کے تحت جو یہاں پر کیش وصول کرنے کے لیے آئی ہیں, ایگزیکٹلی ان تمام تر لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے بٹھایا ہوا ہے. ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان ان فیملی سے مل بھی رہے ہیں, ان سے بات بھی کر رہے ہیں, جو ان کے مسائل ہیں وہ سن بھی رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی یہاں پہ بھی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے, لیکن تمام تر لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عام طور پہ بھی اپنی جو پوری ایک کیبنٹ ہوتی ہے, وہ وزراء جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس سے ان کو لے کے ساتھ ان کے ہمراہ بیٹھتے ہیں, سو دیٹ جو بھی لوگوں کے سوال بھی ہیں جو بھی ریلیٹڈ ہیں وہ پوچھ بھی سکیں. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان خود جا کے فردن پہلے انہوں نے ان تمام تر افراد سے جو یہاں پہ آئے تھے ان سے گفتگو کی. اب انہیں حماد اظہر صاحب اور ثانیہ نشتر بریف کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام تر جو ہے کام اپنے انجام کو پہنچایا جائے گا. اگین ہم بار بار اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں, بڑی ضرورت تھی اس موقع پہ اس طرح کے پروگرام کی مدد, اگر آپ اس پہ کامنٹ کریں بہت زیادہ نیڈڈ تھا یہ, بیکاز آپ نے ان خاندانوں کی تو مدد کر دی, کفالت کر دی کہ جو اس سے نہیں نکل پا رہے تھے, جو غریب تھے. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا سفید پوش والا, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ, کیونکہ فیصل لوگوں کی اگر سیونگز بھی ہوگی تو 1 مہینہ 2 مہینہ بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ فیبرری سے مارچ
से लोगों को फायर करने का सिलसिला जो शुरू हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए, मार्केटें यहाँ पर बंद थी तो बहुत सारे लोग उसमें काम नहीं करे, लोगों के पास सैलरीज नहीं थी, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी मुल्क में बढ़ गई। और ये वो लोग थे, ये वो तबका था, ये वो सफ़ेद पोश तबका था जो कभी आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगा राशन मांगते हुए, जो कभी आपसे सिग्नल्स पे नहीं आके रुकेगा आपसे पैसे मांगने के लिए। तो इस तमाम तर तबके की मुश्किलात को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का आज इनेकाद कर दिया है, जिसमें 1 रुपये के फंड के बस हुकूमत पाकिस्तान 4 रुपये जो हैं यानी कि 4 गुना बढ़ा के उन तमाम तर लोगों को देंगे। इसलिए वो तमाम तर लोग जो कि साहिब हैसियत हैं, हमें देख रहे हैं, इस टाइम ये वो टाइम है, हमें यूनिटी की ज़रूरत है, तो अपने इन पाकिस्तानी बहन भाइयों का ख्याल ज़रूर कीजिएगा। इस हवाले से वज़ीर भी आगे चल के बात करेंगे और एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मॉल्स की तो हमने बात की, अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। 20% किराए और गाड़ियों में 50% मुसाफिरों में कमी की हुकूमती हिदायत को मुस्तरद कर दिया गया है। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन ने आज से पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs जारी कर दिए गए हैं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब। इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब, हम आपको शाम रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। हुकूमती अहकाम मिल गए हैं कि आप लोग अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शुरू कर दें, रिज्यूम कर लें, आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, क्या वजह है? आवाज़ अच्छा जी, इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे कि इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब से हम बात करें, क्योंकि हुकूमत ने तो अब अहकाम जारी कर दिए हैं कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पंजाब में है वो शुरू कर दें और आज से चलाने के अहकाम भी हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। और इसी वाले से हम कोशिश करेंगे कि हम बात कर सकें ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब, और उनसे पूछें ज़रूर कि क्या ऐसी वजह, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये कह रहे थे कि अगर ये जैसे इजाज़त दे देगी हुकूमत, हमारी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, हम अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो बहाल भी कर देंगे। लेकिन जब इजाज़त मिली तो इजाज़त के बाद इन्होंने हुकूमती अहकामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब। अब से चंद ही लम्हात में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे वजह ज़रूर जानेंगे, क्योंकि लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज ट्रेन सर्विसेज भी बहाल करने के हवाले से भी अहकाम जारी हो गए हैं, बुध से ट्रेन सर्विस भी जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हमारे साथ ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इस्मतुल्लाह न्याज़ी साहब मौजूद थे। हम उनसे तकनीकी वजूहात की बिना पर बात नहीं कर सके। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोरोना के नाम पर अरबों खर्च किए जा चुके हैं। क्या कोरोना मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? रकम कहाँ जा रही है? अखराजात की तफसीलात वाज़ेह नहीं। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप हेडलाइन सुनिए, वापस आइए, हम आपके साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। शो के इस हिस्से में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और वो है आटे की किल्लत। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि इसी बंदिश की वजह से, ट्रांसपोर्ट की बंदिश की वजह से फ्लावर मिल्स बंद होती जा रही हैं। इस हवाले से भी जो है वो हम आगे चल के अब सेगमेंट में बात करेंगे। बिल्कुल, और फैसल ना सिर्फ ये बल्कि यूनिवर्सिटी के तलबा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसें वो बढ़ गई हैं। मतलब क्लासेस तो हो नहीं रहे, ऑनलाइन जो है क्लासेस हो रही हैं। तालीमी साल पूरे एक तरह से ऐसा लग रहा है मुंजमद हो गया है, स्कूल्स बंद हो गए हैं। लेकिन ऐसी तमाम तर सिचुएशन में अगर यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की सेमेस्टर की फीसें बढ़ जाए तो तलबा तो यकीनन परेशान होंगे। इन तमाम सूरत हाल पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले होंगी टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज, कोरोना की वबा के दीगर मामलात की तरह जो तालीमी सिलसिला है वो भी ठप पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, लेकिन इंटरनेट की अदम दस्तियाबी या सुस्त रफ्तारी के बायस कई तलबा बहुत परेशान है। और वैसे ऐसे में तलबा और वालिदैन को एक और मुश्किल पेश है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने फीस स्ट्रक्चर्स में 20 से 40% तक इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने इंटर तक के इम्तहानात तो मनसूख कर दिए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रमोशन की क्या सूरत हाल होगी ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन AGC डॉक्टर तारिक बिनोरी। डॉक्टर तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया। ये कहेगा कि यूनिवर्सिटीज़ ने 20 से 40% तक इजाफा फीस में कर दिया है, ये इजाफा किस मद में हुआ और AGC क्या कर रहे इस हवाले से? आई डोंट थिंक दिस इज करेक्ट। ये हमारे
तक तो कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं आई, लेकिन पता करवा लेते हैं इसका। बाहर का एक चीज़ तो ये है कि फीस को हम रेगुलेट नहीं करते, ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो खुद फैसला करते हैं, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने जो अपना बजट बैलेंस करना होता है, चूँकि हमने गवर्नमेंट की तरफ से बजट्स काट दिए गए हैं तो उन्होंने लास्ट ईयर फीस में इजाफा किया होगा, बट आई एम वेरी सरप्राइज। मगर मैं इसको चेक करके और फिर हम उनसे पता करवा लेंगे, और अगर इसमें कुछ गुंजाइश हो सके तो हम करवा लेंगे। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जो इम्तहानात और नताइज हैं, अब इनका तरीक़ाकार प्रोसीजर क्या होगा? ये हर यूनिवर्सिटी ने तय करना है, उनकी जो टेक्निकल कैपेसिटी है उसकी बेसिस पे। जिनकी टेक्निकल कैपेसिटी कम है वो इंतज़ार करेंगे, जब यूनिवर्सिटी खुलेंगी तब वो इम्तहान लेंगे। जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है वो ओपन बुक एग्ज़ाम, जो टेक होम एग्ज़ाम है, और वाइवा, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब इस्तेमाल कर सकती हैं। और हर एक से हमने रिक्वेस्ट की है कि इस हफ्ते में हमें वो अपनी डिटेल प्लान्स बना दें, उसके बाद हम आपसे भी शेयर कर लेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का से भी ये कहा गया है कि वो पब्लिकली तमाम स्टूडेंट्स को बता दें कि इस तरीके से इम्तिहान लिया जाए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि एक और जो सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स इस वक्त फेस कर रहे हैं वो ये है कि जी ऑनलाइन सर्विसेज, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन सर्विसेज ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, जूम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, या स्काइप प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं कर रहा, तो स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं, उनको दुश्वारी बहुत ज़्यादा है। तो क्या जैसे स्कूलों में कर दिया है कि जी एक तरीक़ेकार वाज़े कर दिया है, तो क्या यूनिवर्सिटीज़ में भी तरीक़ेकार ऐसे वाज़े किया जाएगा कि उनको प्रमोट कैसे करेंगे? देखें, ये जो है सिलसिला इसका इंटरनेट का, इसके ऊपर हमें काफ़ी अरसे से इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए सहूलियात वो प्रोवाइड की जा सके। इस वक्त हमने मुख्तलिफ जगह पे जो सर्वेज़ किए हैं उसके रिज़ल्ट्स में ये आया है कि बिटवीन 7 and 10% स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद इसके प्रॉब्लम्स हैं। बाकी भी जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज जो है उसमें वेरिएशन है, तो हमने उसी हिसाब से उसमें उनके जो प्रोग्राम्स हैं उसको एडजस्ट करने की डायरेक्शंस जारी की। अच्छा, ये बताइए लेकिन ये है कि हाँ, मगर ये मैं आपसे कहूँ कि देखें, जब तक कि ये कोरोना का प्रॉब्लम हमारे पास रहता है, हमें दूसरे रास्ते ढूंढने हैं, और इसमें हमें स्टूडेंट्स की मदद चाहिए कि हम बेहतरीन तरीका। मेरा सवाल ये था कि जो दूसरे रास्ते की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इंटरनेट में मसाइल जो भी आ रहे हैं, क्या ये इस तरह से हो सकता है कि ये MCQs बेस्ड हो जाए? बिकॉज आपने भी इस पे ये किया कि उस पर आपको ऑनलाइन रहने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सबमिट इट वंस, और फिर वो चीज़ें चेक हो जाएं। तो ये वाला जो आप सब्स्टिट्यूट है, इस पे कितना हो रहा है आप लोगों का? क्या दोबारा से कहें, ये मुझे समझ नहीं आया जी। देखिए, इंटरनेट के मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, आप खुद भी इस पे बात कर रहे हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बना लिया जाए, MCQs वाला सिर्फ बना लिया जाए, स्टूडेंट जस्ट हैव टू कम, उसको सबमिट कराया जाए, कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे ना इसका, बिकॉज़ दिस इज नॉट गोइंग एनी कोरोना। देखें, बात यह है कि MCQs भी किसी तरीके से डिलीवर होने हैं। मतलब है हम जो है इस वक्त स्टूडेंट्स को एक जगह पे असेंबल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कोरोना का वो खदशा है। सो हम इस वक्त कोशिश ये कर रहे हैं कि तालीम जो है, बजाय ये कि स्टूडेंट्स क्लास में आए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाए। 90 to 93% ऑफ द स्टूडेंट्स तक कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी के इश्यूज हैं, मगर वो पहुंच रही है। लेकिन देयर इज़ अ गुड 7 to 10% जो कि, और काफ़ी बड़ी तादाद है जो जिनको के प्रॉब्लम्स फेस आ रहे हैं, और हम उनके प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें। सही, सो उनकी जो प्रॉब्लम्स है आप उनको हल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन डॉक्टर तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और वो कह रहे थे उनके इल्म में ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ ने 20 से 40% जो है वो सेमेस्टर की जो फीसें बढ़ा दी हैं, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आ जाती हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पैसे बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए अब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात से दूर है। थोड़ा बहुत आपका मूड चेंज करते हैं, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, और मुश्किल हालात में हम तभी बाहर निकल सकेंगे जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर हम टर्की की बात करें, आपको बताएं कि टर्की की एक कदीम रिवायत में एक रिवायत है जिसका नाम है नेकी की टोकरी, जिसके तहत हर तंदूर पर टोकरियाँ रखी हुई होती हैं, और जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो उनमें रोटी और खाने की जो दीगर अशिया होते हैं वो रख जाते हैं, और ताकि जो दूसरे वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वो आके इस टोकरी से आके अपने खाने पीने की चीज़ें लें और चले जाएँ बग़ैर किसी के सामने हाथ फैलाए।
और इससे मुतासर होकर इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला के रिहायशी डॉक्टर मोहम्मद इखलाक कशफी ने मुख्तलिफ तंदूरों पर नेकी की टोकरियाँ रखवाई हैं, जिनमें साहिब हैसियत लोग अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसी तंदूर से रोटियाँ लेकर रख देते हैं। डॉक्टर इखलाक ये कहते हैं कि वो 20 साल से बनीगाला में रह रहे हैं। उन्होंने एक सदका मरकज़ बनाया हुआ है और वो पिछले 7 साल से अपनी बिसात के मुताबिक लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। और इसी वाले से मज़ीद बात करने के लिए ख़ुद हमें ज्वाइन कर रहे हैं इखलाक कशफी साहब। उनको हम वेलकम कहेंगे शाम रमज़ान में। इशफाक साहब, हम आपको बाखबर सवेरा में खुशामदीद कहेंगे। ये कहेगा कि ये जो नेकी की टोकरी की जो आपने जो ख्याल आपको आया, ये कब से आया और कब से आप ये काम कर रहे हैं? वैसे तनूर वालों के पास जब भी मैंने पूछा है, उन्होंने कहा है जी हमारे पास अभी 1500 रुपये लोगों के पड़े हैं, हमारे पास अभी 2500 पड़े हैं, अभी 2000 पड़े हैं। कभी किसी ने डिमांड नहीं की। इस कदर अच्छे लोग भी पाकिस्तान में और तनूरों पे मौजूद हैं कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे पाकिस्तानी भाई इस चीज़ को पूरे मुल्क में फैलाएं। तुर्की की सल्तनत उस्मानिया की 700 साल रवायत पाकिस्तान में ज़िंदा हो जाए तो ये हमारे लिए डबल खुशी की बात। अच्छा इखलाक साहब, नया सिलसिला आपने कब से जारी रखा हुआ है और कितना ये स्प्रेड हो चुका है? उसमें इस काम में आपको इनिशियली दुश्वारी या मुश्किल तो पेश आई होगी, खुद ब खुद ही ये चलते जा रहे हैं? किस तरह से ये काम हो रहा है? ये सिलसिला यकम रमज़ान इसी साल से शुरू किया है बनीगाला में। अभी तक मुझे इस्लामाबाद में G13 से, सिमली डैम रोड सिरी चौक से, लाहौर वेलेंशिया टाउन से, कराची से कई मैसेजेस आ चुके हैं, कई फ़ोन आ चुके हैं कि जी हम भी ये शुरू कर रहे हैं। हाँ, फैसलाबाद यूसुफाबाद से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह G13 वाला तो तनूर पे ऑपरेशनल हो चुका है। तो इखलाक साहब, और हमारी यही दुआ भी है कि आपका ये जो छोटा सा काम है ये इतना छोटा सा नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी नेकियां भी बहुत बड़ी होती हैं। और पाकिस्तानियों का यही जज्बा है मदिया जो हमें दूसरी दुनिया से अलग रखता है हमारी, ठीक है ना? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जज्बा है कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो जो पाकिस्तानी हैं वो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, डोनेट करते हैं, बड़ी तादाद में एहतियात देते हैं ताकि जो उनके बाकी जो दूसरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो सफ़र ना करें। और अभी हम आपको नेकी की टोकरी से, हमने आपको इस तंदूर से उठाते हैं जहाँ पे लोगों की मदद के लिए नेकी की टोकरी में रोटियाँ रखी जाती हैं। हम आपको किचन में ले चलते हैं क्योंकि आपको मालूम है अभी रोज़ा इफ्तार होने में तकरीबन 2 घंटे तो बाकी हैं। तो आज क्या बनाना है और हमारे किचन में क्या बन रहा है तंदूरी चिकन, तो आपके साथ शेयर करते हैं। मतलब हम जब सोच रहे थे टॉफी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि इफ्तार में भी थोड़ा टाइम रह गया है और ऐसी चीज़ अगर आ जाए इफ्तार से पहले तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ज़रूर बनाइए, इसको ट्राई करें। आप बल्कि बना के लाइएगा, वैसे भी आपके घर के पकौड़े बड़े अच्छे हैं तो अभी भी बनाइएगा, वो एंड हम अब अगली खबर की जाने पड़ते हैं, क्योंकि लाइटर मूड से अगर हम इस खबर पे आए कि माहौलियात भी हमारे लिए बड़े ज़रूरी है और इसको पाकिस्तानी कितना सीरियस लेते हैं उसकी ज़मानत अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दे रहा है। ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तालिबा सारा खान, उन्होंने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के बारे में बनाई एक फ़िल्म। इसको इंटरनेशनल वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में पहला इनाम मिला है। पहसून इसका नाम है। हमारे नुमाइंदा आफ्ताब बेग ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। एक छोटी सी बच्ची भी जानती है कि दरख्त लगाना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से फिर हम उससे माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं। ना सिर्फ आलूदगी बल्कि से मौसम गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी कम होगा। कराची वालों को भी पता चलेगा, ये पूरा हफ्ता हीट वेव का है तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता चलेगा कि जितने दरख्त काटने थे वो काट दिए। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस पे अब कौमी सतह पे एक शऊर उजागर हो रहा है और जब छोटे छोटे बच्चे भी इस पे सोचना शुरू कर दें तो कितनी ही अच्छी ये बात है। तो शऊर अच्छी बात है और जितनी आगाही है इस हवाले से वो हम देते रहेंगे, और आगाही जितनी आ जाए उतनी बेहतर है। अभी मैं आपको बताएं कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार में शराकत पर इत्तफाक के समझौते के नतीजे में अफगान सदर और उनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला जामे हुकूमत की तश्कील पर रजामंद हो गए हैं। मुआहदे के तहत अशरफ गनी ही मुल्क के सदर रहेंगे, जबकि दोनों रहनुमा मुसावी तादाद में अपने अपने वजीर मुंतखब करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात की रहनुमाई भी करेंगे।
याद आपको दिलाएं, गुज़िश्ता बरस अफगानिस्तान में होने वाले इंतखाबात में अशरफ गनी और अब्दुल्ला जो थे दोनों जो है वो विक्टोरियस करार पाए थे। बिल्कुल जी। और गुज़िश्ता बरस अफगानिस्तान में जैसे भी फैसले बात कर रहे थे कि इंतखाबात में अशरफ गनी और डॉक्टर अब्दुल्ला दोनों ने इंतखाबात में जीत का दावा किया था और ये पहली बार किसी हिस्ट्री में देखा गया था। पाकिस्तान ने हालिया मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मिलकर काम करने से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, जिसके लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से भारत को सख्त और वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि चूँकि भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद की है, लिहाजा भारत से मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अफगानिस्तान के अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कोशिश की थी, भारतीय अखबार हिंदू को इंटरव्यू दिया था और भारत तालिबान मुज़ाकरात की उन्होंने तजवीज़ दी थी। इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अफगान अमूल और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान तय पाने वाले समझौते को किस तरह देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। आवाज़ बहुत कम आ रही है भाई। रहीमुल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम रहीमुल्लाह साहब से भी बात करेंगे, लेकिन एक खित्ते में बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है। एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो एक अच्छा चल रहा है और ये पाकिस्तान के बेनिफिट में भी। और दूसरी जो पॉजिटिव आउटकम है मदिया इससे वो ये है कि कोशिश की थी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कि भारत तालिबान कुछ मुज़ाकरात, कुछ समझौता, कुछ बातचीत हो जाए, लेकिन अफगान तालिबान ने कहा है कि नहीं, भारत टेबल पर नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसके देखा है कि किस तरह से रिपोर्कॉशंस उन्होंने देखे हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कितनी ज़्यादा कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस रहा है। और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीनियर तज़कियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। रहीमुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान एक मुआहदा तय हो गया है, तो ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते को आप कैसा देख रहे हैं अफगानिस्तान के लिए? देखें, इस समझौते के लिए बहुत लंबे मुज़ाकरात हुए और बड़ी कोशिशें हुई। अमेरिका ने बार बार अब्दुल्ला और अशरफ गनी से कहा कि वो अपने मसाइल बातचीत के ज़रिए हल करें और एक मखलूत हुकूमत बनाएं, जिस तरह पहले भी 5 साल इनकी मखलूत हुकूमत रही। बिल आखिर ये मुआहदा हो गया है। हालांकि अब्दुल्ला ने भी अपने आप को सदर डिक्लेयर कर दिया था और अशरफ गनी ने भी हल्फ ले लिया था। तो मेरे ख्याल में ये एक अफ़गानिस्तान का सियासी बहरान हल करने के लिए एक अच्छा कदम है। लेकिन पिछली बार भी 5 साल इनकी हुकूमत रही और इनमें इत्तेफाक बहुत कम रहा और ये डिलीवर नहीं कर सके। अब भी कुछ ज़्यादा इनसे तवक्को नहीं है, क्योंकि आप देखें 50% काबीना में जो अफराद होंगे वो अब्दुल्ला के होंगे, 50% अशरफ गनी के होंगे। कुछ गवर्नर अब्दुल्ला जो है वो मुकर्रर करेंगे, कुछ अशरफ गनी मुकर्रर करेंगे। और जो ये अमन का सिलसिला है, अमन मुज़ाकरात, इसकी सरबराही अब्दुल्ला करेंगे। तो मेरे ख्याल में आगे जाकर मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल। अच्छा रहीमुल्लाह साहब, इस खबर का एक और बड़ा अहम पहलू ये है, अफगान तालिबान ने भारत का किरदार अफगानिस्तान में मनफी करार दिया है। उन्होंने भी कहा है कि भारत हमेशा अफगानिस्तान में गद्दारों को सपोर्ट करता रहा है और मुमकिन कोई भी सालिसी है उसका इम्कान मुस्तरद कर दिया है। ये जो मौजूदा करंट सिचुएशन है उसमें इस बयान की कितनी अहमियत आप देखते हैं? लेकिन ये बात इसलिए सामने आई है कि अमेरिका के अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो पिछले दिनों भारत गए थे और वहाँ पे उन्होंने भारत को मशवरा दिया था कि वो तालिबान से बराह रास्त बात करें और जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके सामने रखें। तो उसके बाद ये फिर तालिबान से पूछा गया था कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तालिबान तो ये कह रहे हैं कि माजी में तो भारत का रवैया बड़ा मनफी रहा है, उसने हमेशा अमन की कोशिशों की मुखालफत की है, तालिबान के ख़िलाफ़ जंग का मुतालबा किया है। तो इसलिए वो ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि भारत का रवैया कोई मस्बत हो जाएगा। उनका ख्याल है कि यह रवैया मनफी ही रहेगा। और इसके अलावा ये भी है कि जो बयान दिया है ये शेख मोहम्मद अब्बास तानकज़ई हैं, जो कि कतर में जो तालिबान का सियासी कमीशन का दफ्तर है उसके नायब सरबराह हैं और मुज़ाकराती टीम के सबसे अहम रुकन है। तो मेरे ख्याल में इस बयान की काफ़ी अहमियत है। सही, बहुत शुक्रिया जी। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी मुफस्सल हुई क्योंकि अब्दुल्ला और फाइनली अशरफ गनी के दरमियान एक समझौता हो गया है और इस समझौते से जो सियासी बहरान काफ़ी अरसे से अफगानिस्तान में कायम था वो सियासी बहरान ख़त्म होने में मदद मिलेगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुल्क में माशाल्लाह उसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो इस पॉलिसी पे भी कभी जायज़ा लिया गया कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी किया जाए और साथ ही साथ में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरे करने के बाद जो सरप्लस हो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, क्योंकि ये हमारे मुल्क में ये एक एडवांटेज है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो उसके लिए एक्सपोर्ट्स की भी मार्केट है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख्याल था वो उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात पे ज़ोर दिया कि वक्त आ गया है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको उतनी अहमियत दी जाए जिसका कि वो मुस्तहिक है, क्योंकि एक सेहतमंद कौम ही एक सेहतमंद और एक तरक्की की तरफ अपना सफ़र जारी कर सकती है। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि रिफॉर्म्स को स्पीड अप किया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए। जो हेल्थ रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं, अस्पतालों की बेहतरी है, इस पे जो है तो बहुत ही उन्होंने ज़ोर दिया, क्योंकि हेल्थ सेक्टर इस वबा ने हमें बताया कि इसके बग़ैर सेहत का निज़ाम ख़ास तौर पे गरीब लोगों के लिए इसको बहुत एफिशिएंट होना चाहिए और आने वाले वक्तों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इसके साथ जो बुनियादी चीज़ें थीं कोविड के हवाले से, उस पर मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पूरे जो मीटिंग थी उसमें सब बहुत पुरएतमाद, असद उमर साहब भी और जितने बाकी हमारे वज़रा और इस टीम के मेंबरान हैं वो बहुत पुरएतमाद भी थे और उनका ये ख्याल था कि हम इस वबा को अभी तक हम एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से इस पे ये हमारे कंट्रोल में है। इन बातों का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि हम ये कहें कि कोरोना ख़त्म हो गया है। कोरोना है और कब तक रहेगा ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम आवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि वो हरगिज़ ये ना समझें कि जब दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स खुल गए हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरह के पहले थी। हमें एहतियात का दामन बिल्कुल अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ये वक्त है कि साबित करें कि हम एक ज़िम्मेदार कौम हैं, हम एक ऐसी कौम है जो कि इकट्ठे होकर लड़ना चाहती है इस वबा से, या किसी भी जो ऐसी जो कौमी इशू हो उस पर हम बिल्कुल एक ही तरह से एक कदम चलेंगे। और साथ ही में मैं अपोजिशन को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फ़ैसला दिया है हम उसका खैर मकदम करते हैं। हमने तो पहले दिन से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से ये बात करते आ रहे हैं और जो भी जिस तरह मैंने कहा कि हमने इक़दामात लिए हैं वो एक तसलसल हैं, उसमें एक बहुत क्लैरिटी नज़र आती है, उसमें एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आती है जिसमें कि आपने एक तवाज़ुन पैदा करना था इन जानों में और मईशत में। अपोजिशन बजाय इसके कि इस पर सियासत कर दे, जो कि वो कर रही है, आज भी कुछ PMLN के कुछ लीडरान साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है। देखिए, ये इस बात की खमाजी करता है कि जो हुकूमत पहले दिन से जो उसका एक प्लान था, जो कि उसकी हिकमत अमली थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसकी बुनियादी वजह अगेन मैं ये कहूँगा कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनीयत है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उनकी उसी से ही वो परेशान रहते हैं। और जो भी उन्होंने फ़ैसले लिए हैं उसमें उसका जो महवर था वो यही था कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसकी जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो इंटरप्ट ना हो और उनकी ये ना हो कि कोरोना से ज़्यादा लोग भूख की वजह से मर जाएं। तो
اوور آل یہ ایک پیغام تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اہم ہوگا. تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, بہت مختصر وقت ہے. اچھا, تو یہ ابھی آپ نے جس طرح فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ آپ نے مطلب شاپس وغیرہ کا اور ان کے ٹرینیں وغیرہ کی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے تو آپ یہ اس پبلک کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ مطلب اس کے لیے کوئی میکینزم بنایا ہے آپ نے کہ کیونکہ یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک شاپ کھلے تو ادھر خواتین مردوں سے زیادہ تو خواتین کا رش ہو جائے. دیکھیں اس کو روکنے کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر رمضان میں جو ہے وہ پہلے رمضان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی جو ہے نہیں ہونے دیں گے. اس دفعہ بھی یہی ہوا. شاہ صاحب مہنگائی اتنی ہوئی کہ لوگ پریشان ہو گئے, اس کے اوپر کسی کو چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا جو پہلے سوال کا پہلا حصہ تھا وہ بہت ہی اہم ہے. آپ نے جو سوال کیے وہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی اپیل ہم عوام سے کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دیں. اب دیکھیں حکومت ڈنڈا لے کر کسی کو یا پرائم منسٹر صاحب لوگوں کو ہاتھ سے پڑھ کے گھر نہیں بٹھا سکتے. آپ کو اگر ایک فیسلٹی دی گئی ہے, ایک راستہ پیدا کیا گیا ہے, تو اس کو کامیاب کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ یہ چیز کام نہیں کر رہی اور لوگ اسی بے احتیاطی کا ثبوت دے رہے ہیں جو کہ بدقسمتی سے ابھی تک دیا ہے, تو پھر یہ چیز دوبارہ نافذ کر دی جائے گی, بند کر دی جائے گی. تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ یہ اس سختی سے کتنی تکالیف ہوتی ہیں. تو آیا وہ تکالیف برداشت کرنا چاہتے ہیں, یا وہ ایک جو سمپل قسم کی, ایک بہت ہی آسان قسم کی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ یہی رواج رہا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, جبکہ اور ممالک میں جب آتے ہیں تو وہ چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا, یہ ہمارا ایک معاشرے کا ایک سیریس پرابلم ہے. کوئی وجہ نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں آئی ہے اس پورے اس کرائسس میں. کھانے پینے کی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس میں ہم بالکل کامیاب رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کوئی تعطل, کسی چیز کی کمی بیشی نہیں آنے دی. اب انفلیشن نیچے آ رہی ہے, انٹرسٹ ریٹس بھی نیچے آ رہے ہیں, مزید نیچے آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچویشن سے ہم فائدہ اٹھائیں اور تعاون کریں. جی یہ جو احساس پروگرام کے تحت کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے 3 مراحل گزرے. 3 مرحلوں میں لوگوں نے پیسے تقسیم کیے. پہلے 2 مرحلے جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے, اور پھر غربت کی لکیر سے اوپر آس پاس کے لوگوں کو بھی کور کیا گیا, جو بہت اچھی بات ہے. اب چوتھا مرحلہ ہے سر, وہ لوگ جو روزگار کو بیٹھے ہیں ان کو کور کر رہے ہیں. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ آن لائن فارم ہے, اس میں ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو اداروں کے ملازمین جنہیں 3 ماہ سے سیلریز نہیں ملی. ان اداروں نے انہیں لیاف بھی نہیں کیا, جاب سے بھی نہیں نکالا, لیکن وہ بھی اسی کرب سے گزر رہے ہیں جس سے جاب لیس ہونے والے لوگ ہیں. تو سر ان کے لیے بھی کوئی اس طرح کی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ بھی اس میں کور ہو جائے. سیکنڈ سر, آپ نے ٹرین کی جو روانی ہے اس کی بات کی. سندھ گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ معاملات اتنے اچھے نہیں چل رہے, تو یہ ٹرین جب چلے گی, صرف میں جائے گی, تو اس سے ترقیاں مزید بڑھیں گی یا معاملات کی کہتے ہیں؟ دیکھیں, اگر میں اس آپ کی آخری بات کا تو میں فوراً جواب دے دیتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اس ایشو پہ بہت سیاست کی ہے. NCOC ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ان کی مکمل پریزنٹیشن ہوتی ہے. وہ چیف منسٹر خود بھی ہوتے ہیں, تو جو بھی فیصلے اب تک ہوئے ہیں وہ کوئی یک طرفہ فیصلے نہیں تھے, اس میں وہ بالکل شامل تھے. وہ الگ بات ہے کہ وہ واپس جا کر وہاں پہ سیاست شروع کر دیتے ہیں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے, تو بنیادی طور پہ سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے. دوسری بات کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے جو پیکیجز تھے کووڈ کے سلسلے میں, اس میں ایک آج بھی اس کا افتتاح ہو رہا ہے. وہ لوگ جو کہ جن کی نوکریاں تھیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی, بے روزگار ہو گئے, اور ساتھ ہی ساتھ
حکومت نے ایک اور پروگرام بھی وہ کیا تھا اسٹیٹ بینک کے تھرو، جس میں کہ یہاں تک کہ کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کو کہ سیلری جن کی چونکہ آمدن رک گئی ہے تو ان کی سیلریز کے لوگوں کو وہ نوکری سے نہ نکالیں، بہت ہی آسان 3% کی انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو لونز کی فیسیلٹی بھی دی ہے۔ تو اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ادارے اس سارے ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں، اور آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے پاس جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہت ہی محدود ہیں، اور جس طرح سے اس ملک میں نقب زنی کی گئی، جو آج بڑے پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور جو مافیا جو اس کا سارے اس میں ایک ملک میں ایک اضطراب کنفیوژن پھیلا رہے ہیں کہ پلان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ سارے مل کے جو ہے تو اس کو ہم ایڈریس کریں اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کہ عوام میں بے چینی پھیلے، ایک تذبذب پھیلے اور ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو۔ حکومت اپنے تئیں ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو کہ اس کے بس میں ہے، چاہے وہ بے روزگاری کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ چھوٹے کاروباروں کو سہولیات دینے کا ہو، چاہے وہ ایکسپورٹرز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ تو یہ سارے جو اقدامات ہیں وہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہیں کہ حکومت عوام کا خیال رکھ رہی ہے، آگے بھی رکھے گی۔ بس یہ دعا کریں کہ معیشت کا پہیہ اور جو ہمارے پاکستانیوں کی جانیں یہ محفوظ رہیں اور ہم یہ اس وبا کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہیں۔ شکریہ۔ ایک بات ہے کہ آپ نے نوجوان پروگرام کے تحت لاکھوں لوگوں سے پیسے لیے ہیں، فارم لیے ہیں، اپلائی کیے ہیں لوگوں نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر 15 دن کے اندر دیں۔ آپ یقین کریں لاکھوں نوجوان اتنے بے چین ہیں، سوائے عثمان ڈار صاحب کے حلقے کے 25 لوگوں کے ابھی تک کسی کو کوئی لوگ نہیں۔ کائنڈلی یہ پی ایم صاحب کے نوٹس میں نہیں جی نہیں، دیکھیں اس میں بالکل وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ انشاءاللہ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں اور بھی تیزی آئے گی۔ اب دیکھیں نا احساس پروگرام میں ہم نے 100 ارب سے زیادہ پیسے 85,000 خاندانوں کو ہم نے پہنچائے۔ یہ ہم پاکستان میں ہمارا جو سسٹم ہے وہ ذرا سا سلو ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ جو پرائم منسٹر کی جو خواہش ہے جو وہ ہے کہ جلد از جلد ہر اس طبقے کو، چاہے وہ ابھی میں نے ذکر کیا بالکل ان کو بالکل ملیں گے۔ یہ کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس میں، لیکن جب ایک دفعہ کام چل پڑے پھر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہے احساس پروگرام میں کوئی تعطل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ تو وزیر اطلاع شبلی فراز گفتگو کر رہے تھے۔ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو شام رمضان، اور آج ہمارے راک سٹار، میگا سٹار اور سپر سٹار علی ظفر کی برتھ ڈے ہے، اور یہ تمام تر یہ ٹائم جبکہ کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ علی نے اسپیشلی لوگوں کی آگاہی کے لیے سانگز بنائے ہیں، نہ صرف سانگ۔ پچھلے دنوں بہت خوبصورت نعت بھی علی ظفر کی جانب سے آئی تھی، اور اب علی ظفر فاؤنڈیشن بھی آ گئی ہے جو کہ مزدوروں کے لیے، لوگوں کے لیے جو کہ سفر کریں، سب سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ تو علی کی برتھ ڈے ہے، اور علی کی برتھ ڈے کے موقع پر علی سے بات نہ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ السلام علیکم جی علی ظفر، ویلکم ٹو شام رمضان۔ آپ ہمارے شو میں آئے، 4 چاند لگا دیے، کیسی گزری ہے یہ کوارنٹین برتھ ڈے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام، بس بڑی اچھی گزر رہی ہے۔ جو کہتے ہیں نا وقت جو اچھی طرح گزر جائے وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ سو جتنا لوگوں کا پیار مل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، ادروائز بھی ٹویٹر پہ، میرے انسٹاگرام پہ جو میسیجز ہیں، اور آپ لوگوں نے جو جس طرح ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح وش کیا، سو تھینک یو سو مچ، تھینک یو ایوری بڈی فار آل دی لو۔ اچھا علی، کچھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، وانٹ یو ٹو انلائٹن اباؤٹ یور فاؤنڈیشن، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح یہ کام کرے گی۔ علی ظفر فاؤنڈیشن جو ہے جی، ہم کرونا کی وجہ سے جو ہمارا متوسط طبقہ ہے، ڈیلی ویجز ہے، ان میں ہم راشن تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور ابھی تقریباً 4000 فیملیز کو ہم یہ بانٹ چکے ہیں۔ ہمارا جو لیٹسٹ فوکس ہے اب وہ ہے ہماری جو مائنورٹیز ہیں، کرسچن کمیونٹیز جس طرح ہیں، اور ٹرانسجینڈرز جو ہیں۔ ٹرانسجینڈرز جو خواجہ سرا ہمارا اس لیے فوکس، اس لیے کہ سوسائٹی میں جو طبقات ہوتے ہیں جن کو سوسائٹی ہماری خاص طرح سے انداز سے دیکھتی ہے، ان کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کرتی، ان کو ہمارے بیچ میں نہ صرف انکلوڈ کرنا بلکہ یہ احساس پہنچانا
اور اپنے آپ کو یہ احساس دلانا کہ کہ ہم سب برابر ہیں اور وہ بھی ہماری سوسائٹی کا اتنا ہی پارٹ ہے، ان کا بھی اتنا ہی حق ہے چیزوں میں، وہ بھی اتنے ڈیزرونگ ہے، چاہے ہمارے ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہو، ہماری کوئی بھی مائنورٹی ہو یا کوئی بھی نیگلیکٹڈ کمیونٹی ہو. تو اس وجہ سے ہم ان پہ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ کیونکہ میرا تعلق میوزک فرٹرنیٹی سے ہے تو ہمارے جو میوزک فیملیز کئی بہت ہی غریب ہوتی ہیں ان کو بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں علی ظفر foundation.org پہ جا کے. یو کین جسٹ ڈونیٹ جو آپ کرنا چاہیں تو ہم لوگوں تک پہنچا دیں. تھینک یو سو مچ علی. ہم دعا گو ہیں اس چیز کے لیے بھی کہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور آپ سالگرہ اپنی اسی طرح مناتے رہیں. اگلے سال ایک سالگرہ تو کوارنٹین بولتے تھی. لانگ لیو علی ظفر. ہم ایک آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ.